السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، اصغری بیگم کی بڑی زبردست سروس کی گئی ہے، بڑی زبردست جو ہے اس کی شکست اس میں ہوئی ہے۔ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب ہی نہیں دے رہا ہے، اور جو اس کی عادت ہے بڑبڑ کرنے کی وہ کیے چلے جا رہا ہے۔ اس گفتگو کو پورا ضرور سنیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو غصہ آئے گا، کیونکہ اس کی حرکتیں وہ ہیں کہ گفتگو کو جھگڑا بنا دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ گفتگو کے درمیان دونوں طرف سے بول چال ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کے درمیان پہلے ایک بندہ بول لے، پھر اس کے بعد دوسرا بندہ بولے۔ میں اپنی بات کہہ دوں، وہ اپنی بات کہہ دے، مگر وہ اس بات کو جو ہے پسند ہی نہیں کرتا کہ اس طرح سے گفتگو کی جائے پیار محبت سے۔ خیر، ہم نے اس میں گفتگو کی ہے، اور اس کی ہٹ دھرمی کو ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، میں آج آپ کے سامنے ایک دیوبندی کو کال کرنے جا رہا ہوں جو کہ بڑا بڑبولا ہے۔ بہت زیادہ یہ لوگ بڑبڑ کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارے سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں کو کال کر کے تنگ کرتے ہیں، اور کسی سادے آدمی کو کال کرتے ہیں جو کہ ان کی بدتمیزی پہ ان کو پھر گالی سنا دیتا ہے، تو کہتے ہیں دیکھو بھائی، بریلویوں پہ صرف گالی بکتے ہیں۔ ہمارا کوئی عالم گالی نہیں بکتا، اور نہ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، اور نہ گالی میں اور بدتمیزی میں کوئی پہل کرتا ہے۔ اور ہمارے عالموں کو تو کہنا یہ ہے کہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، ہاں اگر ہمیں کوئی چھیڑ دے تو پھر اس کو ہم چھوڑتے نہیں۔ آئیے جناب حضرات، میں ایک دیوبندر کو کال کرنے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات ان کی حقیقت، ان کی اصلیت آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کا نام ہے راشد سلمان۔ आपण ज्या नंबरशी संपर्क करू इच्छिता तो सध्या बंद आहे। कृपया नंतर प्रयत्न करा। द नंबर यू आर حضرت اس کا نمبر آج بند آ رہا ہے، تو اسی کے گرو کو کروں کیا؟ کر لیجیے۔ عارف سے بات کرانے بول رہا تھا نا یہ؟ ہاں کریے۔ اور ہلو جی حضرت، یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ تو مولانا طفیل سے بات کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ آپ سے بات کرنے کی ہمت کہاں ہے حضرت؟ پہلے یہاں تو کہہ دیجیے گا کہ تو ان کے لائق نہیں ہے۔ جی، ہاں، تو مجھ سے بات کر لے، میں ان کا ارے شاگرد ہوں۔ حضرت، جب یہ آپ کا چیلا پہلے یہاں حاضر ہے تو پھر آپ کو ضرورت کیا ہے؟ ہاں بولیے کہ میں ان کا شاگرد ہوں، مجھ سے بات کرو۔ انشاءاللہ۔ بولیے کیا ابھی شیطانی ہے؟ ہاں، لائن پہ لیتا ہوں حضرت اس کو۔ لے لو۔ اور دیکھنا پھر اس کی بوکھلاہٹ، یہ پیار سے بات نہیں کرے گا، میرا خالی نمبر دیکھ کے بوکھلا جائے گا۔ اگر میں کچھ گڑبڑ کرے تو نہیں، آپ کوئی بھی کچھ کہنا ہی مت، ریکارڈ چل رہا ہے۔ کچھ بولنے کا نہیں آپ کو۔ میں اس کی حقیقت دکھانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ अब जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। اچھا حضرت، اس کا بھی کال نہیں اٹھا، پہل تو پہنچی مگر کال نہیں اٹھا۔ میں اصغر کو کال کرتا ہوں، اس نے مجھے کال کیا ہے۔ کریے۔
તમે જે વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે એ જવાબ નથી આપી રહ્યા. इसका भी जवाब नहीं आया, इसने भी कॉल नहीं उठाया, किसी और को करता हूँ। मैं करता हूँ तो उठाते नहीं, और वो करते हैं मैं काम में रहता हूँ तो कहते हैं देखो भाई नूर हसन फोन नहीं उठाता है। फिर आरिफ शतानी को लगाओ, आरिफ शतानी को दोबारा। अच्छा ठीक, हाँ दोबारा उसे लगाओ। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। दूसरे कॉल पे व्यस्त बताने लगा। अच्छा आ गया कॉल, हो गया। अरे ये हाँ अली असगर का आ गया, ठीक है जनाब हजरात, अली असगर का मेरे पास कॉल आया है और आज मैं इसकी फिर से हकीकत दिखाने वाला हूँ। हेलो हेलो जी अली असगर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह नूर हसन बरेलवी ही हूँ, बस से चौड़ा हो जाता है कोई मुझे बरेलवी कहता है। अली असगर साहब बोला तो साहब बोलने में तुम्हें पता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? जानते हो अली साहब किसको बोलते हैं? साहब कहते हैं भंगी को, ठीक है? साहब कहते हैं भंगी को साहब भंगी बोलते? हाँ साहिब बोला जाता है, लफ्ज है साहिब। हाँ तो साहब को बोलते। जब तुमको इतना इल्म नहीं है कि मैंने किस नियत से तुमको खुदा है तो बड़बड़ करने की बीच में जरूरत क्या है? खैर आपने मुझे कॉल किया था। ऐसे बार नहीं होता तुम्हारे मतलब में नियत का ऐसे बार नहीं होता। अरे साहब कहते हैं, फिर वही बात, साहब कहते हैं भंगी को। तुम्हारे मतलब में नियत का ऐसे बार नहीं होता है, तुम्हें पता है? अरे यार अच्छा ये बता मौलाना का मतलब क्या है? मौलाना का मतलब क्या है? एक मिनट मौलाना का मतलब क्या है? मैं साहब का मतलब पूछ रहा हूँ। मौला का मतलब क्या है? मौलाना। अरे साहब पूछ रहा हूँ, साहब। देखिए मैंने आपसे फालतू बहस करने के लिए कॉल नहीं किया है, आपने मुझे कॉल किया था, किस वजह से किया था? और शोर में से थोड़ा सा बाहर निकल जाओ। तुम्हारा असारी किताब है, फिर वही बात, ये किताब है वो किताब है। मौलाना पहले शर्त तो पूरी हो जाए, पहले शर्त रखना। क्या करना? तुम तो अपने मौलवी के फतवे से काफिर हो गए, माज़अल्लाह गुमराह हो गए, दोनों फतवा तुम्हारे ऊपर लगा। तुमको मैं इसलिए बोलता हूँ अच्छा एक मिनट बात करने से पहले मानते हुए मुसलमान रह ही नहीं सकते। बात करने से पहले कुछ मेरा दावा है क़यामत तक, ये आपका दावा है क़यामत तक, तो इंशाल्लाह ये आपका दावा क़यामत तक नहीं, अभी जो है मैं इसको चकनाचूर कर देता हूँ। मर जाओगे कुफ्र खाना तो मर जाओगे, लेकिन जवाब नहीं पाओगे हमेशा। कुफ्र हवाला नहीं करोगे तुम, कुफ्र की हालत में रहोगे, कुफ्र की हालत में रहोगे। वैसे हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि वहाबी देवबंदी बोलते हैं समझते नहीं, सुनते हैं फिर भी समझते हो। मैं कहता हूँ पढ़ते हैं तब भी नहीं समझते। कुछ उसको पेश करते जनाब मौलाना साहिब अस्सलाम वालेकुम, ये लिखना कहना कुफ्र और ज़लाल है तुम्हारे। तो मैंने तुमको सलाम कर दिया नहीं, तुमने नहीं, कई अल्फाज है इसमें साहिब भी है, तो साहिब भी कहना। साहिब नहीं कहा मैं, तो भंगी बोला है। ज़लाल का जरिए है। मैं ये कहता मैं कहता आपको अली असगर देवबंदी साहब, तो ये मैंने नहीं कहा, मैंने कहा असगर साहब, मैंने भंगी ना के साहब बोल दिया है ना। साहब कहते हैं, साहब कहते हैं, मैंने कहा अली असगर साहब, तो साहब कहते हैं भंगी को, किसी को भी कहो तो मैंने भंगी ना कहते साहब बोल दिया। फिर वही बात। देखिए मैं फालतू बहस नहीं कर रहे हो, तुम मेरा मूड खराब कर रहे हो, मुझे फालतू बकवास नहीं करनी ना, नहीं मुझे फालतू बकवास ही नहीं करनी। मैन मुद्दे पे आओ, मैं आगाह कर रहा हूँ तुमको, मैं तुम्हारे धर्म पर जमा रहा हूँ, तुम्हारे मैन मुद्दे पे आओ, मैन मुद्दे पे आओ, मैं मैन मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूँ। फिर वही बात, मैन मुद्दे पे। अरे यार इसका फालतू बातों का कोई जवाब होता है? ये फालतू बात है। सुनिए फालतू बातों के लिए मेरे पास फालतू बहुत बैठे हैं। थानवी जी कहते हैं कि हमारी देवबंदी आवाम की अकल ऐसी जैसे गधे का आजू, इतना तो बढ़े तो बढ़ता ही चला जाए और घटे तो घटता ही चला जाए। और वो अली और वो जो है ना, और वो अजगर देवबंदी, सुनो ना, अजगर देवबंदी बिल्कुल फिट बैठता है थानवी जी की इस मिसाल पर।
तेरा हमल मैंने कहा ना फालतू बातों के लिए मेरे पास फालतू बातें बहुत है, मगर मैं नहीं चाहता कि फालतू बातें हो। अफजरी बेगम सुनती नहीं है, नूरसन भाई, अफजरी बेगम सुनने के लिए पैदा हुई नहीं है, समझे? ये सुनने के लिए पैदा नहीं है, ये जलील होने के लिए पैदा हुई है जी। जलील होने के लिए पैदा हुई है, खाली जलील, इनके किस्मत में जिल्लत लिखी हुई है, समझे? थानवी जी ये सुअर सत्तर औलाद की औलाद है ना। जी। थानवी जी एक जगह कहते हैं कि जितने भी गधे थे अहमद लोग थे मेरे ही हिस्से में आ गए, तो ये अजगर हरामी। जी हजरत मालूम है क्या? जी 2 मिनट 3 मिनट समझे, ये सब सीख जाती है, इनके पास कुछ मालूम नहीं है, और हवाले से गलत देती है, इनके हवाले का हम मंसूरा हम कर ही देते हैं। अभी पिछले दिनों में इनकी जिल्लत जो है पूरी दुनिया देख रही है, समझे? जी इनके दुबुर को लाल की हक है। जवाब देने खामोशी सुन रहा हूँ, जवाब दे कैसा जवाब? जाहिल मतलब और कुछ कह रहा है कि तुम्हें नियत से एतबार नहीं है, तो इसी मालूम है नियत से कहा साहब क्या माने होते हैं, इसके मालूम में साहब किसे कहते हैं। अच्छा साहब है या साहिब है? साहब है या साहिब? फिर सामीन बोला, फिर ये सामीन, खाली यही सब सीख क्या था, इसको कुछ नहीं मालूम। सामीन 2 मिनट 3 मिनट ये दलील होने के लिए, इसके पास कुछ है ही नहीं। अबे लफ्ज क्या है, साहब है या साहिब है, ये बता। तो नहीं कुछ आता जाता कौन सा लफ्ज है पहले, और इसका चुनाव सिंह खाता। जी हजरत, क्या है, साहब है या साहिब है? पहले जल्दी बता। साहिब दोनों इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे दोनों में लफ्ज क्या है पहले बता, साहब है या साहिब है? दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों पर दोनों लफ्ज कैसे नहीं इस्तेमाल कर सकते? लफ्ज है क्या पहले बता। यहाँ साहब है या साहब है? नहीं साहिब है ना वहाँ पे। जी साहिब है। और नूरसन ने क्या बोला है? साहब। क्या बोला हो? क्या बोला, तू बता क्या बोला है? हाँ तो साहब भी बोल सकते हैं क्या? साहब बोला मैंने, साहब बोला है। लफ्ज क्या है? साहिब तूने अभी माना है, तूने माना साहिब है। अच्छा चलो, नूरसन ने साहब बोला है, अभी तूने साहिब माना कि लफ्ज साहिब है। सामीन देखिए, ये अभी इसने माना है कि लफ्ज साहिब है, और नूरसन भाई ने साहब बोला है, तो वो लफ्ज है ही नहीं, तो इतलाक कहाँ पे? साहब नहीं बोला है, साहब बोला है, साहब अली असगर साहब। चलो इसकी शिकायत आगे नूरसन भाई मौजूद पे बात करो, इसकी शिकायत हो गई, इस पे ये हवा हम मंसूरा हो गया, आगे बोलिए, आगे बात करिए। अरे मरदूद कहेगा, इसी पर बात। अरे गाली नहीं, लफ्ज साहिब है, अभी तूने माना कि लफ्ज साहिब है। जवाब दे तू। अबे लफ्ज अभी तूने माना है कि साहिब है। दलील दे। अबे अजालुल कायनात, अभी तूने ये माना है कि लफ्ज साहिब है, अभी तूने माना है सुअर से बदतर इंसान के लफ्ज साहिब है। दोनों में से कोई लफ्ज इस्तेमाल कर, साहब इस्तेमाल कर सकते हैं देवबंदी के लिए? साहब और मैंने कहा यहाँ दोनों माना होगा। अबे मैंने कहा कि यहाँ दोनों माना होगा। अबे साहब का कोई माना ही नहीं है। अरे सुनिए, मैंने कहा यहाँ दोनों माना होगा। इतना असगरी बेगम साहब और साहिब दोनों के अंदर असगरी बेगम बताइए जरा सा। साहब और मैंने लोग भी माने, और मैंने साहब नहीं बोला, मैंने साहब नहीं बोला, साहब बोला है। नूरसन भाई जरा सा रुक जाओ। चलो माशाल्लाह, साहब साहिब बोला है। अरे गधे पागल कही जा। साहब बोल रहा हूँ, साहब। फिर झूठ बोला। क्या बोला? झूठ बोला, साहब बोला है। और नूरसन कह रहा है वो निकाल साहब बोला, अली असगर साहब बोला है। चल वो निकाल वो बात निकाल है। असगरी बेगम सामीन रिवाइज करके पीछे सुनिए, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास। कि जो है को जो है हिला दिया है। अभी तुम्हारा बोला हो गया है। साहब नहीं बोला, मैंने साहिब बोला है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। फिर झूठ बोला। ये झगड़ा करेगा, ये झगड़ा करेगा, नहीं बात कर पाएगा, ये झगड़ा करेगा। मैं इसका कॉल कट कर रहा हूँ, कॉल कट कर दो इसका। अभी काट के भागेगा, देखिएगा अभी काट के भागेगा, देखिए। मैं नहीं भागूंगा, नहीं सुन रहे हैं। लफ्ज क्या है? भागता है। अच्छा चल, नूरसन भागता है, एक अच्छा सुन असगरी, ये बता कि अल्लाह की कसम खा करके बोल कि नूर हसन ने साहिब बोला। अल्लाह की कसम खा।
नूर हसन ने अभी बोला है कि मैंने साहब नहीं बोला है। अल्लाह की नूर हसन ने अभी साहब बोला है, साहब 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 मैंने हजरत को बताया साहब नहीं बोला, साहब बोला है। नूर हसन ने बोला है कि मैं साहब नहीं बोला हूँ, और क्या बोला है कि साहब बोला है। हाँ, तो मैंने बताया क्या हजरत को? एक मिनट अल्लाह की कसम खा करके असगरी बेगम ये बता कि इन्होंने साहिब बोला है। चल बोल, अल्लाह की कसम खा, असगरी बेगम खा अल्लाह की कसम, खा अल्लाह की कसम खा क्या? हाँ, खा अल्लाह की कसम। कसम की नूर नूर हसन हसन नहीं, कसम भी नहीं खाएगा। साहब देखिए, ये कसम भी नहीं खा रहा है और साहब ये कसम भी नहीं खा फंस गया, फंस गया, फंस गया। दोनों में कोई अरे मैंने अगर साहिब बोला है तुझे तो दिखा, ने कहा कि साहब नहीं बोला, अगर मैंने तुझे साहिब बोला है तो दिखा। नूर हसन भाई, जी जी, आप कसम खा करके बोल दीजिए कि मैंने साहब बोला है, कसम खा के बता दीजिए। मैंने असगर को साहब बोला है, साहब और साहब भी नहीं बोला है, साहब मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, साहब अली असगर साहब, रईसुल मुनाफिकीन, मैंने अली असगर साहब बोला इसको साहब, मैंने न साहब कहा है न साहिब कहा है। चल मैं इससे बात करना चाहता हूँ तुझसे, इसी पर बात करना चाहता हूँ, इसी पर बात करना चाहता हूँ, इसी पर बात करना चाहता हूँ। बोल, ये हवाला किसका है, किसने मैं बात करूंगा, मैं, अरे मैं बात करूंगा, गुलाम बात करूंगा, वो संदेहों का बरेलवियों का। बदतमीजी मत कर भाई, मैं बदतमीजी बिल्कुल नहीं, बदतमीजी बिल्कुल नहीं, बदतमीजी बिल्कुल नहीं, बदतमीजी बिल्कुल नहीं, मैं तो सब्र कर रहा हूँ। अरे आज लगता है कोठे पे डोज नहीं। सही से नहीं दिया गया असगरी बेगम को, लगता है कोठे पे डोज सही से मिला नहीं है। असगरी बेगम को कोठे पे डोज नहीं मिला है। अबे देवबंद लगता है कि तुम किस बदतमीजी, अरे नहीं डोज मिला तो हम लोग दुबुर लाल करने के लिए आए हैं, घबरा मत, हम लोग दुबुर लाल कर देंगे। असगरी बेगम हम लोग दुबुर लाल कर देंगे। इस पर तुम अपना एतराज रखो। कसम खाई थी कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ अली असगर जुबैर असादी आरिफ खान के बात नहीं करूंगा फोन में। मैंने कहा फोन किसने किया है? नूर हसन भाई फोन किसने किया है? मैंने किया, मैंने किया, मैंने कौन किया है? और मैं ही बात करूंगा, मैंने कॉल किया है, मैं ही बात करूंगा, मैंने कॉल किया, मैंने, जी 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 मैं बात नहीं करता यार, ये यानी कोई अजमत नहीं है, अल्लाह की कोई औकात नहीं है। ये ऑडियो को खराब करता है, ये ऑडियो को खराब करता है। लड़के शांति से बात कर ले। मैं अब इसका कॉल काट कर रहा हूँ, मैं इसका कॉल काट रहा हूँ, मैं उस तरह की गुफ्तगू को पसंद ही नहीं करता। नहीं बोलने दो, बोलने दो। ओ जमीला भाई के लड़के, अबे खामोशी से बात करे तरीके से। ए जमीला भाई के लड़के, ए जमीला भाई के लड़के, अरे जमीला भाई के लड़के तरीके से बात करे, तरीके से। मुझे में पैसा नहीं कमरा दे रहा। जी हजरत, मैंने कॉल किया है ना, तो जब आपने कॉल किया बिल्कुल झूठ बोल रहा है वो। जी बिल्कुल, हमारी और आपकी बात हो रही थी, और बात करने के लिए मैंने किसी और को कॉल लगाया, उसका कॉल लगा नहीं, फिर मैंने इसको कॉल किया, इसका कॉल आया हुआ था तो मैंने वापस किया है। जी बिल्कुल। अच्छा एक मिनट, ए बता, ए असगरी बेगम कफारा कितनी सूरत, ए बता कफारा की कितनी सूरत है असगरी बेगम, जरा सा बता दीजिए तो सरई उज्र बता दीजिए कफारा। माशाल्लाह ये बता नहीं पाएगा हजरत, मैं गारंटी से बोलता हूँ। एक मिनट खामोश, कफारा की कितनी किस्में है असगरी बेगम, शरीयत में कफारा की कितनी किस्में, जल्दी से बता दो। हाँ, अगर मैं बता दिया तो कफारा अदा करेगा ना? हाँ बता, और शरीयत का कफारा बता, जल्दी से बता। हाँ, अगर बता दिया तो करेगा तू? अरे अब बता देना, जब मेरे लाजमी नाफिज होगा मैंने जब ना मैं तौबा करूंगा। नाफिज, सही बात है, जब शरीयत का हुक्म आएगा तभी ना, जब ना तौबा करूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं बता, कफारा की किस्में बता, कितनी किस्में हैं और किस पर होती है? किस्में, हाँ शरीयत में कफारा की पहले किस्में बता, कितनी किस्में हैं, चल जल्दी बता। हाँ बता रहा हूँ। हाँ किताब रखो, जल्दी से बता, जाहिल जल्दी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं बता दूंगा अरे जब मेरे ऊपर हुक्म नाफिज होगा तब ना जाहिल में तौबा करूंगा, पहले जल्दी बता। खाली इससे किसमें पूछ लो, खाली ये भाग जाएगा वरना। हाँ बोल।
अगर मैं कफारा किस्म बता दिया जल्दी बता, तो बता तौबा तूने, करे जल्दी शर्म से। बता। फिर देखो सामीन ये मतलब लेकर तो जल्दी आज बता, तक ये पता जल्दी नहीं बता, था, इसलिए तो कफारा अदा नहीं किया। कफारा की किस्में कितनी है जल्दी बता, जल्दी जल्दी बता। कितने किसमें है और किस पर कफारा लगता है? 1 2 3 4 अरे यार, कितनी है जल्दी बता। सुन हाँ जल्दी बता, जल्दी मैं बता, किसमें? कफारा की अरे गिनती में बता, ये बताएगा नहीं, ये नहीं बताएगा। किसमें है? अरे सुन नहीं, सुन, कफारा जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ अरे सुन सुन सुन, अगर हाँ। बता दिए तौबा करेगा तो जल्दी, जब मेरे ऊपर हुक्म तौबा करेगा तो जब पहले मेरे ऊपर- किसने बता? हाँ, अरे जबरदस्त वर्ष जब वो मेरे ऊपर नाफिज होगा तो मैं करूंगा। फराइज बता, तूने कहा था कि तू अबे, छोड़ देगा, जाहिले तो ये मतलब उसने वो- किया था। मैं तुझे हाँ, पूछ रहा हूँ, हाँ, अगर मैं मैं कफारा की भागे मत, इसको लोग लड़ाई कहते हैं, इसको लोग लड़ाई कहते हैं। और ऐसे गुफ्तगू मैं इसका कॉल ही कट कर रहा हूँ। बस बहुत सब्र हो गया, सब्र हो गया, बस बहुत सब्र हो गया। जब मेरे ऊपर हुक्म मैंने कॉल काट दिया, उससे रुजू मैंने कॉल काट दिया। मैं इस तरह की बात बर्दाश्त ही नहीं करता हूँ हजरत। ये सब्र के बाहर जा रही है, फिर मैं ऑल फॉल बक दूंगा इसको, हराम का पिल्ला कहीं का। ये बात करने की, ये बात करेगा नहीं, समझे? मैं इस तरह की गुफ्तगू पसंद ही नहीं करता हूँ हजरत, मेरे सिर में दर्द होने लगता है। भाई जी अरे मैं इनसे कह रही हूँ, क्या चल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अरे आपको सलाम कर रहे हैं हजरत। हाँ हाँ समझ गया। कर रहा हूँ मैं। वालेकुम जी। जी कहिए, ये है बात जी। करने लायक? हाँ, ये बात करने काबिल है या इल्मी? कहाँ बात कर पाएगा ये वो? हजरत ये जमीला भाई का लड़का है, ये मुझे ऐसे बात आएगा। शरीयत में जब जिसको शरीयत में कफारा की किस्में न जी। मालूम हो, है ना, कि जी। शरीयत में कफारा की कितनी किस्में हैं। इसको और भाई, मैंने सुनिए, हेलो, जी मैंने जी। क्या, मैंने इनसे क्या कसम खाई थी, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मेरी कसम वो है, समझ रहे हैं? मैंने जी। क्या कसम खाई थी कि जुबैर रसादी, आरिफ अगानी और अली असगर को फोन करके किसी मौजू पे मैं बात नहीं करूंगा, इसलिए कि ये झूठे हवाले देते हैं, ठीक है, जी और बड़बड़ाते हैं। ये 2 वजह, एक तो झूठे हवाले देते हैं और बड़बड़ाते हैं, ठीक है, जी सुनते नहीं। तो अब जाहिर सी बात है, अब मैंने फोन किया नहीं, मैं फोन करके क्या, मेरी कसम थी कि मैं फोन करके किसी मौजू पे नहीं बात करूंगा, ठीक है। जी जी जी। जी तो जी। फोन तो मैंने नहीं किया ना, फोन तो मैंने किया है ना, फोन तो नूरसन भाई ने किया, तो और मेरी इसका कसम कॉल कैसे टूटी? इसका कॉल मेरे तरफ आया हुआ था। अच्छा, मैं इसको जब फोन करता हूँ, हेलो, जी जब मैं फोन जी। करता हूँ तो मैं इसको, मेरी पहली बात क्या होती है कि मैं आओ तो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में मुनाजरा करो, ठीक है। जी जी। तो मैं अपनी कसम पे रह करके कि भाई तुम आओ व्हाट्सएप ग्रुप पे मुनाजरा करो, ठीक है। जी तो अब मैं वहां पे बात करता हूँ तो ये बात बढ़ाने लगता है, ठीक है। वहां भी मेरी जी। कसम रहती है। अगर मैं फोन करके ये कहूँ कि अली असगर, मैं आला हजरत के मौजू पे या हिफ्जुल ईमान पे या तक़वियतुल ईमान पे या तहरीरुन नास पे या बराहीन कातिया पे या इल्मे गैब पे या हाजिर व नाजिर पे या इख्तियार रसूल पे, है ना, या मिलाद जी। फातिहा पे या चादर गागर पे मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जी। मेरी कसम टूट जाएगी, है ना। जी 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 जी। जब मैं इस तरह की कोई बातें ही नहीं करता हूँ तो मेरी कसम कैसे टूटी? नहीं, मैंने सुनी आपकी गुफ्तगू, आप ये कहते हैं कि व्हाट्सएप में आप मुनाजरा करते सब रूम। व्हाट्सएप में ग्रुप में मुनाजरा जी, करने जी, के लिए वो जी, वहाँ जी। पे बड़बड़ाने लगता है, तो मैं उसका जवाब वहाँ पे मतलब जिम्नन वो जवाब इल्जामी जवाब जी, दे देता हूँ। जी, हालांकि मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं फोन करके किसी मौजू पे बात करूंगा। भाई मैं जो जी। मेरा मौजू है, जो तुम्हारा हमारा इख्तलाफ है ना, मेरे नाम से क्यों चिढ़ता है इतना ये? मेरे नाम से इतना क्यों चिढ़ता है ये? मेरे नाम से इसके चेक लग जाते हैं। जनाब हजरात, आपको बस यही इतना ही दिखाना था। देखो फिर इसका फिर से कॉल आने लगा, बताइए। हाँ लगाइए, उसको रिसीव करिए। लो यार, ये अच्छे से तो बात नहीं करता हजरत ना, इसलिए गुस्सा आ जाता है। आप बात करिए, आप बात करिए। हाँ मैं ही बात करूंगा। कॉल काट दिया हजरत इसने, मैंने रिसीव किया, उसने उधर काट दिया। आ गया फिर से। हेलो नूरसन तो फोन काटे क्यों भागा? जनाब आप बात नहीं कर रहे थे। और चरखी साइड दोनों देखिए, बदतमीजी मत कीजिए मुझसे, जिस मौजू पर आप चाहें बात कर सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली से बात करने का कायल हूँ। लड़ाई करना मेरा मकसद नहीं, आवाम को झगड़ा दिखाना मेरा मकसद नहीं। बताइए, इल्मी गुफ्तगू कीजिए, किस पर बात करेंगे? हाँ बात करूंगा मवाइज़ नईम के बारे में। तो कौन सी? हाँ बिल्कुल। तो मवाइज़ नईमिया पे जो आप बात कर, इसलिए काटा कि लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, और लड़ाई झगड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा अहमद ने लड़ाई की है, तुम्हारी किताब में यार बदतमीजी बिल्कुल नहीं, एक दूसरे को नहीं। वो तुम्हारे लोगों ने किया है सब कुछ,
हमने नहीं किया, हमने तो दिफा। मैं पेश करूँ? अच्छा एक मिनट, मैं तेरे पापा को गाली बकूंगा। एक मिनट, मैं तेरे खैरियत उस्ताद, क्या हाल है? अरे हवाला दे दूं? मैं अगर तेरे पापा को, तेरी अम्मी को गाली बकूं तो तू मेरे साथ क्या करेगा? चाय पिलाएगा, गले से लगाएगा या डंडे से मारेगा? हवाला लो, तुम मुझे इल्जाम लगा। हवाला वाला देना बंद कर, पहले मुझे ये बता, मैं तेरे अम्मी पापा को गाली बकूं तो मुझे गले से लगाएगा, चाय पिलाएगा या डंडे से मारेगा? नहीं मेरी बात सुनो, बहुत फिर वही बात, तो वही तुम्हारी दुबुर हम सूरत करते हैं फिर आला हजरत के डंडे से, समझे? और सिर्फ एक फरीजा अपने इधर उधर मत भाग, देख फालतू बातें करेगा और खुद भी फिर वही बात, ये लायानी बातें करता कि मैं फिर मैं कासिम ननौतवी को तेरे गंगोह के खानकाह में ले डाल दूंगा, समझा? और नासिम और फिर गंगोही को जो है उसको ले डाल दूंगा मैं। तेरी किताब मैंने हवाला दिया हूँ, अब बोल। मैंने कहा तू कोई एक मौजू चुन जिसपे तू मुझसे प्यार मोहब्बत से अदब और एहतराम के दायरे में रहकर बात कर सके। मुझे लड़ाई दंगा बिल्कुल फसाद अच्छा नहीं लगता। ठीक है। अब बोल किस मौजू पर बात करेगा? तो उसके 2 सफ़े पीछे के 2 सफ़े आगे के, और वो सफ़ा जिसको तू पढ़ रहा है वो हवाला पहले मेरे पास भेज दे, उसके बाद बात होगी। भेज दूँ? हाँ जल्दी भेज। सच में बात करेगा? हाँ, बिल्कुल इंशाल्लाह मैं सच में बात करूंगा। किताब ले लेता हूँ, फिर किताब ले लेता हूँ, ऊपर है। हाँ उतार रहा हूँ, किताब ठीक भेज रहा हूँ, दोनों भेज रहा हूँ। हाँ फोन चालू रखना, ठीक है? फोन चालू रखना, तो पूरी इंशाल्लाह हाँ फोन चालू रख, माशाल्लाह। तू समझ रहा है कि मेरे और कॉल काटना मत, तुझे खुदा की कसम होगी अगर तू कॉल काट के भागा तो। अभी तो काटा, अभी तुझे क्यों काटा? मैंने इसलिए काटा कि लड़ाई दंगा फसाद मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे सिर में दर्द होने लगता है। मैंने फोन काटा तूने, है ना? अब तो मुझे मैंने काटा, मैं बोलता हूँ मैंने काटा, अब कह रहा हूँ अब मत भागना। तो प्यार से बात करेगा तो सुबह से शाम तक बात करूंगा, और अगर बदतमीजी करेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा, लड़ाई लड़ेगा तो मैं 1 सेकंड में कॉल काट दूंगा तेरा। बिल्कुल। एक बात सुनो, हाँ हमारा साथी हमारे लाइन पे, हमारे कोई नहीं बोलेगा। मुझे मालूम है तेरा साथी लाइन पर है, मुझे मालूम है, तूने लिया है ना लाइन पे जोड़ा है मुझे। तुम्हारे तरफ में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? तुम्हारे भी तुफैल शमसी लाइन पे है, शायद लाइन पे है, ठीक है? देख बदतमीजी मत कर, प्यार से बोल, वरना तू मुझे जानता ना मैं ड्राइवर हूँ। बदतमीजी क्या है इसमें? मुझे जानता ना तू मैं ड्राइवर हूँ। मौलवी भी है, भूल गया क्या? पिछली बातें भूल गया क्या? फिर वही बात है, मैं मौलवी नहीं हूँ। मौलवी होता तो तेरी बखी उधेड़ देगा, मौलवी होता तो तेरी पूरी जमात की और इल्मी बखी उधेड़ता। अब खामोश रहेगा तू? बोल। बदतमीजी कर रहा है और मुझे बोल रहा है बदतमीजी में मत करना। तो बदतमीजी तू कर रहा है, कब बदतमीजी तू करा रहा है? मैं कह रहा हूँ। अरे यार किताब उठा, हवाले भेज, बात खत्म कर। हमारी बात में बदतमीजी करता है तो तू बदतमीजी कराते है ना? किताब उठा, स्क्रीनशॉट करके मुझे दे, फालतू बात नहीं। भेज रहा हूँ। मैं जनाजा निकाल के रखूंगा, इसका जनाजा दुनिया देवनिया तो दहशत फैला दूंगा इंशाल्लाह। ये तो ये इसका बाप भी मानेगा, ये कैसे नहीं मानेगा? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? पूरे हाल वर्ड को बुला लिया जी। जल्दी स्क्रीनशॉट करके हवाला दो मुझे। हवाला भेज रहा हूँ, लेकिन नेट भेज दो। वजह से नहीं जा रहा है, ठीक है? एक काम कर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हेलो जी बोलिए। हाँ, नेट स्लो होने की वजह से गुफ्तगू चालू है। हाँ ठीक है, इसके नहीं जाएगा, ठीक है? ऐसे कैसे नहीं जाएगा? भेजो अभी पढ़ने से पहले। नेट स्लो है तो नहीं जा रहा है इसके। अभी भेजो पढ़ने से पहले, ये शर्त है मेरी। और अपनी बात तुम कह लो और मेरी बात सुन लो, बस मेरी यही शर्त है। और क्या बोल रहा हूँ सुन, बोलो। हवाला सुन ले, क्योंकि नेट ना बिल्कुल नहीं, मेरे पास किताब है। बिल्कुल नहीं, ये सातवां चांस है, ये सातवां चांस। बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल नहीं, ये सातवां चांस है, सातवां। 6 बार बगैर हवाला दिए भागे हो, 6 बार, ये 7वां चांस है, यही करना बंद करो। ठीक है, फोन काटता हूँ, ठीक है? ना हवाला नहीं जा रहा है, हवाला नहीं जा रहा है। अच्छा तो चल जा, ठीक है, काट दे, फिर कर।
काट दिया कॉल इसने। ठीक है, जब तक वो हवाला न देगा। हेलो जी हजरत, जहाँ पे है वहाँ का नहीं, उससे 2 सफा 3 सफा ऊपर और 2 वही मैंने बोला है कि 2 सफ़े पीछे के 2 सफ़े आगे के, और वो हवाला वो सफा जिसपे तुमने बात करने का एक मिशन बनाया है। ठीक है ठीक है ठीक है। कौन सा हाँ। हवाला देगा? हाँ, सारे हवाले वही देगा। कौन सा? मतलब वो मुझे 5 पेपर भेजेगा, 2 सफ़े आगे के 2 सफ़े पीछे के, यानी पूरी बात भेजेगा मुझे। जी जी जी। हाँ अच्छा, वो देगा कौन सा? तुम मालूम है किस मुद्दे को बात करना चाहता है? हाँ, वो झूठ बोल रहा है हमारे ताल्लुक से। हमारे एक आलिम का हवाला कुछ बताता है, दूसरे आलिम का हवाला कुछ बताता है, हालांकि हमारे आलिमों ने इन शैतानों का जवाब दिया है। समझे हजरत? तो मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से, और बाकी आप हैं ही, क्योंकि मैं तो तालिब इल्म हूँ, आप जैसे हजरात का एक चेला हूँ छोटा सा। जी, तो जब मेरे उस्ताद हाजिर हैं तो मुझे किस चीज का गम है। नहीं, आप बात करिए इससे आज। इसकी कॉल आ गया, कॉल आ गया, कॉल आ गया। बताइए। जी जनाब, भेज दिया? हाँ भेज देते। नहीं आया है जनाब मेरे पास। हाँ, तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं भी। तुमने नेट चालू नहीं किया और कैसे बोल देगी भेजो? हाँ हाँ, या अल्लाह। चले जा, बारी बारी से बंद, बारी बंद कर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तेरे कितने को लाइन पे लिया है तू? इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे मैसेज का। तेरे लाइन पे कितने को लिया है तू? बोल। मेरे पास तो 1000 लोग हैं, तू क्या करेगा बोल? कितने? तुमको नाम बता तू, हाँ, नाम बता तू। मैं कभी खाली रहता हूँ, तू ये बता पहले। हाँ, कितने को लाइन पे लो बता मुझे। कितनों को लाइन पे लूं? हाँ, लाइन पे तू कितने को लिया है? क्यों, तेरे को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तू झूठ क्यों बोल रहा है? अरे ये 3 सफ़े हैं, ये सिर्फ 3 सफ़े, ये सिर्फ 3 सफ़े हैं। 2 सफ़े आगे के 2 सफ़े पीछे के। हाँ हाँ, बात कहाँ से शुरू है जरा वो बता। नहीं है तेरे पास किताब नहीं है। सामने ये बोल रहा था मुझे कि स्क्रीनशॉट भेज, मैंने भेज दिया, लेकिन इसका नेट बंद था। चल ये बता। नहीं नहीं नहीं, गद्दार झूठ बोल रहा है। तूने कहा था कि जा नहीं रहा है, अगर उधर से चला जाता तो तेरा तो राइट हो जाता ना। जब तेरा ही नहीं आया तो मेरे पास कहाँ से आता? झूठ बोलने की भी हद है। तू नूर हसन से आके बहस करेगा, झूठ बोलेगा? सुन, मुझसे किसी भी बात में तू जीत नहीं सकता। तूने कॉल काटा था ना, तू इबारत पर। और सुन, 1 मिनट जरा, 1 मिनट। 42 44 43। अच्छा, और इसके बाद का हवाला कहाँ है? इसके बाद का हवाला कहाँ है? कौन सा? 45 में भी भेज, 45 भेज, 45 भेज, 45। हाँ, तो फातिहा पड़ेगा उसका सामने रखे क्या? और तूने ये पूरा ये काट के क्यों भेजा? ये आधा अधूरा क्यों दिया? तूने पूरा क्यों नहीं खींचा ये वॉलपेपर? मैं वीडियो में लगा दूंगा, आधा अधूरा भेजूंगा पूरा। हाँ, लगा क्यों दूंगा? तूने मेरे पास क्यों नहीं भेजा पूरा? ये काट के क्यों भेजा? बता दो पूरा। फिर वही बात, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। झूठ बोलना बंद कर। अच्छा, वो सामीन देख लेंगे, मैं वीडियो में लगा दूंगा, इस वीडियो को बना के लगा दूंगा। ठीक है, 45 से गए ना? 45 का देखा ना? हाँ, 45 का भी भेज जल्दी। पूरा भेज दिया। 45 भेज दिया, भेज दिया। देख, अच्छा, खोल के देख। 1 मिनट। हाँ, चल तू अपना एतराज रख, ठीक है? हाँ, तू अपना एतराज रख। तू क्या कहना चाहता है? तुम्हारा अहमद यार खान नईमी तुम्हारे मौलवी के फतवे की जद में आकर के जो है ये काफिर हुआ, क्योंकि उसने शरीयत और हदीस से एतमाद हटा दिया है। ठीक है, तो ये मेरे पास किताब है, मेरा दावा सुन लिया ना कि तुम्हारा अहमद यार खान नईमी अपने और अपने हम मसलक मौलवियों के इबारत की रोशनी के जद में आकर के इस्लाम दायरा इस्लाम से खारिज है, क्योंकि
हाँ ठीक है, अब मैं माज़ल्लाह इबारत पेश कर रहा हूँ, इबारत लानत पेश कर रहा हूँ। इबारत है मुआइज़ नईमिया हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 143। अहमद यार खान नईमी लिखता है, अलबत्ता शैतान अपनी आवाज़ हुजूर की आवाज़ से मुसाबा कर सकता है। ठीक है, तो अब ये बता क्या है, तेरे नजदीक ये अकीदा जायज़ है? मैं इसको पढ़ता हूँ ऊपर से, ठीक है, एक मिनट तू रुक जरा। इस आयत करीमा में चंद उमूर काबिल गौर हैं। एक ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कौन सा वाक़या यहाँ मज़कूर है। तुम ये कि बाज़ अंबिया इकराम के तारीख़ी वाक़यात कुरान करीम ने क्यों यहाँ किए, या तो तमाम के वाक़यात बयान होते या किसी के ना होते। तीसरे ये कि यहाँ किस किस फ़िरक़ा के क्या क्या एतराज़ हैं, उनके क्या जवाब हैं। इससे कबल हजरत कलिमतुल्लाह मसीह अलैहिस्सलाम की वालिदा ताहिरा हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पैदाइश का जिक्र था। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ यहूदियों के साजिश, कत्ल और खुदाए पाक का उनको महफूज रखने का तज़किरा है। यहाँ चार बातें हुई: वफात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उठाना, काफिरों से महफूज रखना और आपके मुतय्यिन को क्या है ये? क्या बोल रहा है? अच्छा एक मिनट, वो छोटा सा दिख रहा है ना, उसको बड़ा किया मैंने, किधर गया? अच्छा, मुत्तबिईन को कुफार पर गलबा देना। एक मिनट, जब यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात देखकर यकीन कर लिया कि यही वो पैगंबर हैं जिनकी तौरात में बशारत दी गई है, तो अपने दीन मूसी के नस्ख और अपने मूसी क्या है? दीन मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से है ना ये बात? तो उसको मूसी बोलते हैं। मूसवी, दीन मूसवी के नस्ख और अपने हुकूमत। और हकीम साहब खैरियत है? मूसवी नहीं, मूसवी। अरे चल, हाँ मैं आलिम थोड़ी, मौलवी थोड़ी हूँ मैं, आलिम थोड़ी। चल थोड़ा बहुत तो हो ही जाता ना। इसके लिए तो गुमराह हुआ है ना, इसके लिए। अबे साले शैतान हराम के पिल्ले, फालतू की बातें मत कर। दीन मूसवी, देख लफ्ज मत पकड़, अकीदा। एक मिनट, अगर मुझसे कोई लफ्ज पढ़ने में ना आए तो क्या मेरा अकीदा खराब हो जाएगा? नहीं, आलिम आप नहीं है नूर सर, मैं समझ गया ना। बकौल तो ये भी आलिम नहीं है जी, ये भी आलिम नहीं है। हाँ सही बात है, ये भी आलिम नहीं है। इसने कहा कि मैं आलिम नहीं हूँ, खामोश करा, उसको हो गया है, इसीलिए गुमराह हो गया। सही बात है, इसीलिए गुमराह हुआ है ये। खैर एक मिनट में पढ़ रहा हूँ। ऐसे तेरे कहने से तेरे बाप के हुकूमत चल रही है क्या यहाँ? आवाम फैसला करेगी, आवाम हमारी जज है। आवाम हमारी जज है, तेरे और मेरे कहने से थोड़ी होगा। आवाम फैसला करेगी, आवाम जज है। चल सुन, आगे सुन। चल बोल। तेरे नजदीक कौन कौन काफिर है? इसकी बात पढ़ी नहीं, तूने कहा कि काफिर और मुशरिक को जज बनाएगा। तेरे नजदीक कौन? तेरे साबित करूंगा ना, वही बात साबित करूंगा मैं। यही पढ़ना, वही साबित कर रहा हूँ। हाँ चल ठीक है, आगे की बात सुन, वरना तू झगड़ा फिर से करेगा। दीन मूसवी के नस्ख और अपने हुकूमत के जवाल के खौफ से आपके दर पे आजार हो गए और आपको और आपकी वालिदा माजिदा तय्यबा ताहिरा को। अबे शुरू से पढ़ रहा हूँ, सफा नंबर 42 से। गधे, तू मुझे बेवकूफ समझ रहा है क्या? पूरी बात पढ़ूंगा। तू खुद बोलता है बदतमीजी नहीं करने का, और हराम खोर खुद बदतमीजी करता है। तेरी तो तू बदतमीज बोलेगा तो बदतमीजी सुनेगा ना। तनासुल है क्या? मैंने कुछ अल्फाज नहीं बोला, खाली तुझे बोल रहा हूँ कहाँ से पढ़ना है। अब तू हाँ तो ये पढ़ रहा है, ये अदब का जुमला है, ये पढ़ रहा है, ये अदब का जुमला है। तू हराम खोर बोल रहा है, अदब का जुमला है ये। अरे बिल्कुल, देख मैंने तुझे बता दिया मैं ड्राइवर हूँ। जैसा करेगा वैसे ही सुनेगा। मैंने तुझे बता दिया, मत निकाल। देख मेरा काम है 142 पढ़। हाँ
والدہ ماجدہ طاہرہ کو برسر بازار گالیاں دینے اور عیب لگانے کا کیا ہے یہ وطیرہ اختیار کیا. کیا ہے وطیرہ ہاں غلط پڑا ہے. وسیرہ ہے وسیرہ. وسیرہ نہیں ہے وطیرہ ہے. وسیرہ واو فا یا راہا وسیرہ. مجھے تو نظر آ رہی ہے یہ تو لگ رہا ہے مجھے. ہاں تو وہی بولنا غلط پڑ رہا ہے بولنا تو. ارے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. چل میں نے اس کو زوم کر کے پھر سے دیکھا ہے شاید ہو سکتا ہے سوادی ہو مجھے غلط نظر آیا مگر کیا ہے وطیرہ. یہ وطیرہ ہے کہ وسیرہ ہے ذرا جواب دے پہلے یہاں. وسیرہ وسیرہ. ابے تو وسیرہ کہہ رہا تھا ابھی سواد بڑھ رہا تھا تو نے بتایا. میں نے کیا واو لا حول ولا قوت الا باللہ. خود بول رہا ہے مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے. مجھے میں نے توا بولا تھا کہ میں ہاں چل میں نے توا پڑھا ہے وطیرہ. آگے خیر حضرت تجھے بہت. ہاں چل پڑھ تو پڑھ رہا ہے نا پڑھ تو نا مجھے دیا میں. حضرت نے بہت صبر فرمایا مگر اعوذ باللہ من الغضب الحکیم بد دعا فرمائی تو تمام گستاخ سور اور بدترین بندر بن گئے. بعد ازاں کچھ یہود نے اس وقت کے بادشاہ کو خبر دے. کدھر سے آگا 43 کدھر گیا. خبر دے کر کہا کہ اگر کسی وقت انہوں نے تیرے لیے بد دعا کر دی تو ہلاک ہو جائے گا. ارے تو نے پورے وال پیپر کا کیا کرا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ ان کو شہید کرا دیا جائے. چنانچہ ایک منافق نے سنا ایک منافق نے حیلیہ سے قتل ہاں کیا ہے ہیلا. اچھا ٹھیک ہے. ہیلا سے قتل کرنے کا وعدہ کیا. اس کا نام ستیانوس تھا. اس نے ایک بار ستیانوس تو اس میں تا نظر آ رہا ہے ذرا تو اس کو ذرا کر کے دیکھ کتنا بڑا نقطہ ہے. خیر ستیانوس تھا. اس نے ایک بار موقع پا کر حضرت کے دولت خانہ قیام میں جا کر قتل کا ارادہ کیا مگر دیکھا کہ یہ آپ بردستہ چھت آسمان پر بردستہ آپ براستہ چھت آسمان پر چھت آسمان پر تشریف لے گئے اور یہ دیکھتا رہ گیا. واپس آیا تو خود اپنی شکل حضرت مسیح کے مشابہ تھی. اس کو سولی دی گئی. دیکھو روح البیان حضور کی یہ صفت خاصہ ہے کہ آپ کی شکل کوئی نہیں بن سکتا. حضور کی یہ شکل کہ آپ کی ہم شکل کوئی نہیں بن سکتا. ورنہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام سلیمان ہے. ہاں سلمان ہے نا. ہاں تو دیکھنا تو بتا کیا ہے یہاں سلمان نہیں تو کچھ اور ہوگا. پڑھ کے بتائیے ذرا. سلیمان بولا تھا تو بتانا لیکن سلمان لکھا ہے. تو لفظ کیوں پکڑتا ہے. ایک منٹ خیر کوئی بات نہیں. تو مجھے میں کم علم ہوں نا. میں کم علم ہوں. سن تجھ سے کچھ میں کم علم ہوں. تجھ سے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. تو لفظوں سے کھیل ہے نا. میں تجھ سے کچھ بھی نہیں کہوں گا. بتاؤں گا نا میں کہ جاہل ہو کر کے اکابر کی عبارت کر کس طرح. تیری پوری دنیا میں کوئی دیوبندی بچہ پیدا نہیں ہوا جو عقیدے کی دنیا میں مجھ سے بات کر لے. ہزار بار کہہ چکا ہوں اور تجھے میں نے 4-5 سال پہلے گروپ میں آڈیو بھیجی تھی نا. تو آج تک بات نہیں کر پایا. عبارت پر جاہل آدمی مسلمان نہیں ہوتا کیا یہ بتا. چل میں تو تھوڑا بہت جانتا ہوں. جاہل آدمی مسلمان نہیں ہوتا کیا یہ بتا دے. ایمان کا فیصلہ کائے پر ہے.
ایمان پر کہ عالم پر؟ بول رہا ہوں عبارت تو مجھے یہ بتا پڑھا لکھا ہی مسلمان ہوتا ہے، جاہل مسلمان نہیں ہوتا؟ عبارت اور پڑھے لکھے، ایک منٹ، پڑھے لکھے ہی جنت میں جائیں گے، جاہل جنت میں نہیں جائیں گے؟ ہم جھگڑا نہیں کرتے، سالے جنازہ نکال دوں گا علمی دنیا میں، عقائد کی دنیا میں تو کیا تیرا بڑے سے بڑا شیطان نہیں بات کر سکتا مجھ سے؟ خیر کوئی بات نہیں، یہ تو بڑبڑا کیوں رہا بول رہا تھا مجھے کہ بکواس نہ کر، بڑبڑا مت ورنہ تجھے معلوم ہے نا۔ خیر میں کہاں بڑبڑا ہوں، میں تو پڑھ رہا ہوں اور پڑھنا تجھے چاہیے، پڑھ میں رہا ہوں۔ مگر میرے آقا سن میرے آقا کے لیے یہاں وضاحت ہو گئی، میرے آقا کے لیے وضاحت کر دی کہ حضور کی یہ صفت خاص ہے کہ آپ کی ہم شکل کوئی نہیں بن سکتا، سمجھے جناب؟ یہاں میرے اس کے بعد البتہ ہاں اب رکنا، اب آگے کی میں تجھے بتا تو رہا ہوں۔ ہاں ایک اس کی کھجلی اس کے ڈبر میں کا خنجر گھس رہا ہے، پڑھیے روح البیان کے حوالے سے۔ سفیل چمکی کو جو ہے سفیل چمکی کے یہاں جو ہے ڈبر میں چلے کاٹ رہا ہے۔ تم سب 3-4 نہیں بولو گے شاید تمہاری جو ہے نا ڈبر کا کیڑا مرے گا نہیں۔ ہم ایک بدتمیز ہمت کر، ایک کے بعد دو مناظر 3 مناظر نہیں ہوتا، خاموش رہا پھنسے گا، وہ نور حسن کو بچا رہا ہے، اس کو بچا رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ارے چپ نا، میں بات کروں گا۔ نور حسن نے کہا، ڈرائیور جاہل نے کہا کہ میں بات کروں گا، تو بیچ میں یہ کیوں بول رہا ہے؟ پھر وہی بات چلا کہ نور حسن کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ موضوع خالی ڈینگے مارتا ہے بس۔ ارے اچھا چپ آج کر، چپ میں نور حسن کا معاون ہوں۔ جی حضرت پڑھ رہا ہوں، سمجھاگیری مت کر، جی جی میں معاون ہوں، میرے مقابلے میں مناظر ہے نور حسن۔ سامعین نہیں بھاگا، بات کر رہا ہوں۔ اوقات نہیں جو جی پڑھ رہا ہوں آیا تو پھر چمکی کی جو میں اضافہ ہو گیا۔ ارے چپ نہ رہے جی، نور حسن مر گیا۔ ارے بات کر، لا حول ولا ہاں عبارت پڑھ رہا ہوں، ہاں چپ رہے چپ، ورنہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل بن گئے ہے نا، یہ یہاں پہ بتایا ہے۔ البتہ شیطان اپنی آواز حضور کی آواز سے مشابہ کر سکتا ہے، جیسا کہ سورہ، اور سارے آگے کا تو نے پورا حوالہ ہی مطلب لیا نہیں، آگے کیا لکھا ہے وہ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ روح البیان اٹھانے کا جو انہوں نے ذکر کیا، روح البیان اٹھا کر کے دیکھیے۔ ہلو جی ہاں اس میں ہے نا سورہ، سننا ارے سننا، یہاں پہ لکھا ہے خود اپنی شکل حضرت مسیح کے مشابہ تھی، اور مشابہ تھی، اس کو سولی دی گئی۔ دیکھو روح البیان، اس میں ہاں روح البیان کا آیا ہے، روح البیان کا حوالہ ذکر کرنا، اب آگے پڑھیے۔ ہاں حضور کی یہ صفت خاص ہے، حضور کی یہ صفت خاص ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہم کس کی، کون سے حضور؟ ہمارے نبی کی بات آ رہی ہے یہاں پہ۔ یہ حضور کی صفت خاص ہے کہ آپ کی ہم شکل کوئی نہیں بن سکتا۔ ہاں کر رہا ہے، تجھے جھوٹ بول رہا تھا کہ تمہارے مولانا نے یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، شیطان کا ایک ہے، تو تو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اس پر میرا اعتراض نہیں ہے، پھر وہ بات اس پر نہیں ہے، نیچے ارے میرا اعتراض اس پر نہیں ہے۔ ارے گدھے، جب یہاں بتا دیا تو لوگوں کا پھر اعتراض بھی ہے نا، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ تمہارے دیوبندروں کا یہ ہے کہ معاذ اللہ تمہارے دیوبندر حضور کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، حضور لگتے ہیں اور حضور حقہ پیتے ہیں۔ شیطان کہیں کہ ابھی وہ حوالہ پڑھ کے بتاتا ہوں تجھے حضور حقہ پیتے۔ ارے تیرے دعوے کا یہاں چٹھا میں نے پھاڑ دیا۔ میرا دعویٰ کیا ہے؟ تیرا دعویٰ یہی ہے کہ تمہارے عالم نے کہا ہے معاذ اللہ کہ حضور کے مشابہ شیطان بن سکتا ہے، آواز نکال سکتا ہے۔ چپ، میرا دعویٰ بکواس کر رہا ہے۔ جب یہاں کلیئر کے بارات کے زد میں آ کر کافر ہوتا ہے۔ معاذ اللہ دیکھ رہے ہیں حضرت اس کی بد زبانی، عالم کے دامن میں کتاب میں معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دیکھیں میری عبارت سے بات نہیں کر رہا ہے، چپ نا، اس پر کوئی اعتراض نہیں ارے چپ، کہ حضور کی ارے تیرا اعتراض، کہ آپ کی ہم شکل کوئی نہیں بن سکتا۔
تو جب منع کر دیا، ارے گدھے جب منع کر دیا تو پھر ارے لا حول ولا، دھوکہ تو دے رہا ہے کہ میں دے رہا ہوں؟ ارے دھوکہ تو دے رہا ہے کہ میں دے رہا ہوں؟ شیطان کہیں کہ جھوٹ بولتا ہے، شرم بھی نہیں آتی تجھے جھوٹ بولتے ہوئے؟ میرا جو اعتراض ہے اس پر ہے، البتہ شیطان اپنی آواز حضور کی سور جیسا کہ سورہ نجم، سن جیسا کہ سورہ نجم میں، اب آگے کا تو نے لیا ہی نہیں ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے وہاں آگے کو. خیر شیطان نے حضور کی روح پڑھی روح پڑھی اس پر کیا ہے اس میں طرح حضور کی طرح کیا ہے؟ ہاں کیا ہے یہاں؟ ہاں شیطان نے حضور کی طرح پڑھ دی. ہاں اذان ہے کیا ہے یہاں؟ تو نے لیا ہی نہیں ہے سارے گدھے، اس کو چھپا دیا. میں تبھی تو کہہ رہا ہوں تو نے پورے ہاں میرے پاس عبارت ہے، تو فکر مت کر. لکھا ہے یہاں پہ شیطان نے، ہاں ایک منٹ نہیں ہے وہاں خالی جو ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، خالی نقطہ ہے وہاں بس، وہاں کچھ نہیں ہے، خالی نقطہ ہے. والنجم شیطان، جیسا کہ سورۃ النجم میں شیطان نے حضور کی طرح پڑھ دی. وہاں تو کیا پڑھی؟ اچھا پھر کیا ہے یہ آگے؟ جس پر آیت نازل ہوئی. ہاں پڑھ. کیا ہے وہاں پہ؟ تو پڑھ نا کیا ہے؟ میں تجھے بھی تو دیکھوں کیا ہے، کتنا پڑھا لکھا. میں تو نہیں پڑھوں گا، میں تو آیت پڑھوانا چاہتا ہوں. یہ الا اذا تمنا القى الشيطان في امنيتي. کیا دوبارہ پڑھیے. پھر پڑھوں. ہاں الا اذا تمنا القى الشيطان في امنيتي. ترجمہ کر. اچھا اس کا ترجمہ کر. ترجمہ کیا ہے؟ تو پڑھنا، تو بتا گا، تو نے پڑھا. مجھ سے سیکھے گا تو؟ پھر وہی بات سیکھے گا تو کرنا. تو بہت بڑا کتب بنتا نا. تو پڑھ اس کا ترجمہ کیا ہے. یہی کرنا بند کر. لا حول ولا قوت الا باللہ. چل تو مت پڑھ، میں ہی پڑھوں گا. سن آگے کی بات کیا ہے. دعا تفاسیر. جن انبیاء کرام کے ولادت وغیرہ میں کچھ عیب امور تھے، ہے نا، عجیب امور تھے، ان کے قصے قرآن نے بیان فرما دیے. جیسے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام. نیز ان واقعات کو مخالفین نے تو بری طرح اور معتقدین نے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا شروع کیا، اور جس سے غلط نتیجے لیے گئے. جیسے یہود نے معاذ اللہ حضرت بطول مریم کو تہمت زنا لگائی معاذ اللہ، اور نصرانیوں نے ان کو چوپ. میرا اعتراض یہاں پہ، البتہ شیطان اپنی آواز حضور کی آواز سے مشابہ کر سکتا ہے. ارے کہاں ہے گدھے؟ اس میں منع نہیں کر دیا. شیطان کہیں گے دھوکہ دیتا ہے. کیا ہے؟ ارے وہاں شروع میں ہی منع. حضرت ایک چیز دو طرح سے کیسے ہو سکتی ہے؟ ذرا کچھ تھوڑی وضاحت کریں گے. میں کہہ رہا ہوں میں نے کھانا کھا لیا، پھر میں کہوں میں نے کھانا نہیں کھایا، تو کیا یا تو ایک منٹ یا تو یہ صحیح ہے کہ کھانا نہیں کھایا ہے، یا پھر اپنی آواز حضور کی آواز سے مشابہ کر سکتا ہے. معاذ اللہ. ارے نہ آیت نہ جو گئی گدھے کی اولاد. یہ صحیح ہے. پھر تو بتا کسی نے جھوٹ بولا. ارے اچھا ایک منٹ. ایک چیز دو وجہ سے ہو جاتی ہے، یا تو تھانوی حرامی ہے یا حلالی ہے. اس نے لکھا میں حرامی ہوں، سن دے اس کی مطلب سمجھا دوں. یا تو حرامی ہے یا حلالی ہے. میں نے حرامی کہا تو وہ حلالی نہیں ہے، اور میرا دعویٰ ہے کہ میں ثابت کر دوں گا. ارے میں لڑائی نہیں کر رہا ہوں، میں لڑائی نہیں کر رہا ہوں. یہاں صاف صاف بتا دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت خاص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل کوئی نہیں بن سکتا. جب ہمارے علماء منع کر رہے ہیں کوئی نہیں بن سکتا، تو پھر یہاں پھر یہ حوالہ بھی دیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کی ہم شکل بن گئے، ہے نا. تو لوگوں نے اعتراض کیا، مگر وہ مطلب یہ جو مارنے کے لیے آیا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ میرا وہ اعتراض ہی. ارے ابھی میں نے اس کا نام پڑھ کے بتا. ایک منٹ وہی تو. ارے اس پر ہے کہ البتہ شیطان اپنی آواز حضور. ابے گدھے، ارے گدھے 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 گدھے، وہ یہی تو بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی یہ صفت خاص ہے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل بن گئے لوگ. ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل بن گیا تھا نا، تبھی تو اسے مارا تھا. مگر ہمارے نبی کی ارے گدھے کی اولاد، ہمارے نبی کی یہ صفت خاص ہے
तू बता अब हमारे ऊपर जो तूने इल्जाम लगाया कि क्या नबी के मुशाबे शैतान और ये कोई भी शख्स क्या हो सकता है, बन सकता है? हमारे नबी ने खुद ही मना कर दिया कि मेरे मुशाबे मेरी शक्ल कोई इख्तियार नहीं कर सकता। तो यहाँ वही तो इनकार किया है, ये हमारे नबी की सिफत खास है, शैतान का पुत्र। अच्छा गधे की औलाद, तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आई? अरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हम मिस्ल बन चुके, बन गए। जवाब दूं? पागल कहीं का, जवाब दे। जवाब लेगा हाँ किताब है इबारात फिर अब नजदीकी नाजायज औलाद, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देख रहे हैं मुसलमानों, देख रहे हैं मुसलमानों, देख रहे हैं मुसलमानों, मुसलमानों देखिए आप, मुसलमानों मैं आपसे मुखातिब हूँ। मुसलमानों मैंने शुरू में ही बोला था आज मैं इनका दज्ल दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। आज ये दज्ल आपके सामने मैंने रख दिया है। इस शैतान को ये पूरी बात समझ नहीं आई कि वो बता रहे हैं कि लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जैसे हो गए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हम शक्ल बन गए, मगर ये हमारे नबी की जो सिफत है ये खास है, हमारे नबी की तरह कोई नहीं बन सकता। इस शैतान को इतनी सी बात समझ में नहीं आई। हराम का पिल्ला हमारे आलिम के ऊपर हमारा ही एतराज लगा रहा है कि तुम्हारे बुजुर्गों ने ऐसा लिखा है, शैतान का पुत्र। अबे हराम के पिल्ले, तूने इनकार नहीं किया बल्कि एतराज किया, एतराज जताया। मैंने अरे मेरी बात सुन। अरे साले तूने तेरा एक मिनट हराम के पिल्ले, बात वही पेश की जाती है जिस पर एतराज होता है। ओ देख रहे हैं हजरात, बात वही पेश की जाती है ना जिस पर इंसान को एतराज होता है। इसको इस पर एतराज था कि तुम्हारे आलिम ने, तुम्हारे बुजुर्ग ने मवाइज़ नहीं या नहीं इस तरह लिखा है। तो अब ये शैतान अपने ही जुमले से काफिर हुआ कि नहीं हुआ? तूने कहा था कि ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिस्ल या शैतान या कोई और जो है मिस्ल हो जाता है, बन जाता है। तूने ये कहा था ना, धोखा दे रहा था। शैतान के पुत्र, शर्म नहीं आई? अबे गधे की औलाद, तूने कहा था कि हम अरे हरगिज़ पर नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम की मिसाल कोई बन जाएगा। माज़अल्लाह देख रहे हैं मुसलमानों, देख लीजिए, इसने यही बोला था। वो तो मैंने इससे हवाले मंगा के तुम पूरी बात पढ़ के बताई कि यहाँ पढ़ ही नहीं रहा है। अलबत्ता शैतान अपनी आवाज हुजूर की आवाज से मुताबिक करता है। मेरा इस पर एतराज है, ये मरदूद खबीज मलऊन जो है ये बात पढ़ नहीं रहा है। माज़अल्लाह अरे वही तो पढ़ा। अरे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आवाज से मुताबिक कर सकता है, ये एतराज तुम्हारा ये अकीदा सही है या नहीं है? ये है कि नहीं बता? नहीं कर सकता। यहाँ कहाँ लिखा है? यहाँ तो इनकार है ना, यहाँ कहाँ है? यहाँ कहाँ है? अपनी आवाज हुजूर की आवाज से मुताबिक कर सकता है, ये इकरार किया है। माज़अल्लाह तो दिखला दे, यहाँ कहाँ लिखा है? दिखला पीला निशान लगाया देख। फिर वही बात, शैतान अपनी सफा नंबर 145 मना कर रहे हैं कि हुजूर जैसा की शक्ल नहीं बना सकता, तो ये अलबत्ता एक मिनट अलबत्ता कहाँ लगाया जाता है? बोल अलबत्ता। हाँ तो ये क्या लिखा क्या, जरा इसको समझ तो ले जरा। अल्लाह जब दही लेता है ना तो अगले छीन लेता है। आया देवबंदरों का मुनाजिर बन के। जब पहले मना कर रहे हैं तो हुजूर जैसी मुशाबत नहीं कर सकता। जमीला बाई के जमीला बाई कुछ कर रहा है अभी तक पढ़ रहा है और धोखा दे रहा है। अच्छा एक मिनट आवाज हुजूर की आवाज से मुताबिक कर सकता है। ऊपर लिखा है नबी अलैहिस्सलाम के हम शक्ल नहीं बन सकता, बिल्कुल सही लिखा है। ये एतराज कर रहे हैं वो, जब हम शक्ल नहीं बन सकता। अच्छा एक मिनट इस पर मैं पकड़ कर रहा हूँ। अच्छा तो तू अब मुझे ये बता, इस पर तेरा हुक्म क्या है, तेरा फतवा? अब मेरे समझ में बात आ गई। अरे सुनो एक और मैं तेरे घर का हवाला दूंगा। अब तू मुझे जरा इस पर अरे सुनो तो मुझे तूने एक और चीज याद दिला दी। अरे सुनना मुझे, अरे बड़ा अच्छा हुआ, सुनना बड़ा अच्छा हुआ तूने मुझे ये बात। ओफो अब मैं तुझसे बस खाली सुनना, मैं बस खाली इसका पूछूंगा। अरे बदतमीजी मत कर, मैं बदतमीजी नहीं बोलूंगा। बस तू इस पर हुक्म लगा दे, अरे बदतमीजी मत कर, इस पर हुक्म लगा। अरे हुक्म लगा, इस पर हुक्म लगेगा क्या? अगर किसी का ये अकीदा हो, किसी का ये नजरिया हो कि हुजूर की हम मिस्ल आवाज जो है वो शैतान बना सकता है या बोल सकता है, इस पर जरा हुक्म लगाइए। क्या लगेगा? कुफ्र का, शिर्क का, मुशरिक का, काय का लगेगा? जरा हुक्म लगा, बड़ा अच्छा है। एक मिनट हजरत। हाँ अभी, हाँ इसके घर से जरा इसका जनाजा निकालो। अब चलो तुम्हारी किताब है तिबियान। अरे फिर वही बात। अब अरे हजरत मैं क्या बोल रहा हूँ इससे? मैंने कहा हुक्म लगा,
हजरत मैंने बोला हुक्म लगा, तुमने कहा हुक्म लगाओ, चुप, तुमने कहा हुक्म, मैंने कहा हुक्म लगा, मैंने कहा हुक्म लगा, लगा रहा हूँ, आगे की बात ही नहीं कहनी, आगे की बात। अरे ये तिबियानुल कुरान है, माज़अल्लाह, देख रहे हैं जनाब, मेरे इधर की बात मुझे बता रहा है। अरे पहले हुक्म लगा, हुक्म लगाना चाहते, और अगर शैतान आपकी आवाज की नकल उतार सके और लोग शैतान की आवाज को आपकी आवाज समझ लें तो हिदायत गुमराही के साथ मुश्तबा हो जाएगी। और तुम्हारे घर का हुक्म बता, तुम्हारे घर का हुक्म बता। अरे सुन तो, अरे सुन, ना इसकी आवाज अपनी आवाज को आपकी आवाज के मुताबिक कर सके और सुनने वाले उसकी आवाज। अरे ये तो मुझे पता ही है, हवाला मेरे पास आरिफ हवानी ने भेज दिया। क्या था अगर अरे ये मुमकिन हो कि अल्लाह हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, तो तमाम शरीयत से एतमाद। मुसलमानों ये बात को नहीं सुन रहा है, मेरे दिमाग में एक और चीज याद आ गई, अब हम का जनाजा निकालूंगा। शैतान सुन, अरे क्या तू अपने घर का हुक्म लगा, हुक्म लगाओ, ओहो, अपने घर का हुक्म। बात अहमद यार खान नहीं कही कि अरे यार फिर वही बात, अरे कर सकता है। अगर ये मुझे एक बात याद आ गई, कुरान से, हदीस से, दीन से, अरे एतमाद उठ जाएगा, अल्लाह से, नबी से कि देख रहे हो हजरत, इस पागलपन के दौरे पड़ चुके हैं। आवाज में कुरान अल्लाह की आवाज में मिक्स हो गया, इसकी बुनियाद पर जो शरीयत नहीं रही, कुरान नहीं रहा, हदीस नहीं रही, तो शरीयत से एतमाद उठ जाएगा। तो तुम्हारे मौलवी तमाम रज़ा खन्नासियत के जो है जो गलत कर दिया है कि उसको एतमाद, उसका एतमाद जो है शरीयत से, कुरान हदीस से हटा दिया है। न तुम्हारा एतमाद भरोसा अल्लाह पे है, न शरीयत पर है, न कुरान पर है, न हदीस पर है, न दीन इस्लाम पर है। तो मैंने फतवा लगाया तुम्हारे घर पे, तुम्हारा सईदी कह रहा है अगर ये मान लिया जाए कि शैतान अपनी आवाज हुजूर की आवाज को मुसाबा कर ले तो तमाम शरीयत से एतमाद उठ जाएगा। हो सकता है हम तक सहाबा की रिवायत जो होते हैं वो आपकी फरमान ना हो, आपके फरमान ना, आपका फरमान ना हो, बल्कि शैतान का कहा हुआ हो। अरे पहले तो कहा नहीं, आप पहले हुक्म पूछ लीजिए अभी से। अब बस यहाँ पर हुक्म लगा, मुझे बस एक चीज याद आई है और बड़ी अच्छी याद आई है, और तू अपनी तरफ से जो झूठ बोल रहा है इसका भी तेरा पर्दाफाश करूंगा और इसी किताब से करूंगा इंशाल्लाह, टेंशन मत ले तू बस यहाँ पे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बड़ा अच्छा हुआ। और यहाँ हालांकि यहाँ पर जो है आयत भी नाजिल हुई है, ए चुप ना, तू चुप, यहाँ आयत का भी जिक्र किया गया है। अरे चुप ना, यहाँ पे आयत का भी जिक्र किया गया है और भी बहुत कुछ इसमें वजाहत है माशाअल्लाह। अब तू इस पर जरा हुक्म लगा दे कि जिसका ये नजरिया हो, जिसका अकीदा हो कि हुजूर के मिस्ल, हुजूर के मुशाबे शैतान आवाज निकाल सकता है, तो इस पर हुक्म क्या लगेगा? और ये हुक्म लगेगा तो सिर्फ बरेलवियों के लिए या देवबंदी के लिए भी लगेगा? जरा हुक्म लगा। जमाते देवबंद का हुक्म बता। जमाते देवबंद का क्या हुक्म? बदतमीजी नहीं, देख बदतमीजी नहीं, बात हो या ना हो तेरा खून काट दूंगा मैं, बदतमीजी करेगा तो। मैं प्यार से बात करना चाहता हूँ। अपनी हामिला बीबी नूरा से बता दो, सुअर से बदतर इंसान। देख बदतमीजी मत कर, हुक्म लगा, हुक्म लगा, हुक्म लगा। ये जो है हुसैनी खानम का भूत सवार है। हजरात देख रहे हैं क्या यही आलिम का तरीका है बात करने का? हुक्म पेश करूँ? हाँ हुक्म लगा। क्या है मरदूद कहेगा, तू क्या अल्फाज इस्तेमाल करता है हराम को? सही यार, अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ ना तुझसे। हाँ हुक्म लगा दे, और ये हुक्म सिर्फ बरेलवियों के लिए होगा या देवबंदियों के लिए भी होगा? बस इतना भी बता। मेरा दावा है कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फिर वही बात देख रहे हैं हजरात। तू अपने घर का बता, तेरे घर का पूछ रहा हूँ, तेरे घर का। अरे तेरे घर वाले कुछ नहीं कहते। अरे देवबंदियों के नजदीक क्या है? हजरात देख रहे हैं। अरे मैं भाग रहा हूँ कि तू भाग रहा है? की बीवी जो है भाग रही है, दावा है ही नहीं। हवाला पेश कर दीजिए हसन भाई, हवाला दे दीजिए। अभी नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसा मजा नहीं आएगा हजरत। पहले इससे साफ करा लो ना, ऐसे मजा नहीं आएगा। पहले दावे के खिलाफ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक मिनट तो फिर इसके खिलाफ भी मेरे तस्लीम किया है। एक मिनट है कि अहमद यार खान नईमी बेरलवी के मरीजुल उम्मत देख बदतमीजी में फिर आ गया, फिर बदतमीजी पे आ गया। बदतमीजी मत कर वरना की इबारत तहरीरात की रोशनी में जो है काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है, मुसलमान नहीं है। तो फिर तुम मेरे दावे को कबूल करने के बाद तुम हमारे अकाबिर की इबारत पेश करोगे, मेरे दावे के खिलाफ होगा, उसूल के खिलाफ होगा। और उसूल के खिलाफ करने वाला जो हज़िए बेरलवी कह रहा है कि उसूल को ऐसा लोग ऐसा मक्कार है। अच्छा ये बता, तेरी बात मानी जाएगी, उसूल का खून तेरी बात मानी जाएगी या तेरे बुजुर्गों की बात मानी जाएगी? पहले अब ये इसको भी साबित कर दे, चल क्लियर कर दे यहाँ पे।
तेरी बात मानी जाएगी, तेरी बात बड़ी है या तेरे बुजुर्गों की बात बड़ी है? तेरी बात मानी जाएगी या तेरे काबिरों की बात मानी जाएगी? इसको हमारे बुजुर्ग की बात ही नहीं चल रही है, अरे बात चल रही है ना मेरी तो तूने कहा ना कि तेरे अकीदे के तेरे कौल के खिलाफ है, तेरे अकीदे के खिलाफ है। मैंने तुझसे हुक्म लगवाया है कि तू इस पर हुक्म लगा कि इस पर हुक्म क्या आएगा, और ये हुक्म जो तू लगाएगा ये अरे मैं अपने दावे के मुताबिक मुसलमानों देख रहे हैं, अपने दावे के मुताबिक देख रहे हैं मुसलमानों। नूरसन भाई, जी, नूरसन भाई, जी, इससे जी। एक बात साबित हो गई, नूरसन भाई एक बात साबित हो गई कि जमाते देवबंद के नजदीक बरेलवी मुसलमान हैं। खामोश रहा, खामोश रहा, हमारे उलमा करते हैं। एक बात साबित हो गई कि जमाते देवबंद के नजदीक हमारे अकाबिर उलमा मुसलमान हैं, माशाअल्लाह। एक बात जी। इस बात से साबित हो गई। जी 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 बेशक। हाँ, इसकी बात से ये बात साबित होती है कि जमाते देवबंद के नजदीक हमारे उलमा मुसलमान हैं। हजरत इन्हीं के घर की किताब इसके खिलाफ जो इसने कुफ्र का दावा किया है, उसने ये दावा किया है। जी ये चुप ना, बीच में क्यों बोलता है? फिर वही बात है कि दलील के तौर पर यार, ये लड़ाई हो गई, पूरी लड़ाई हो गई, सब लड़ाई हो गई सब। हाँ, तू ही कर रहा है मरदूत, जबान तूने खराब की है मरदूत। ये बात साबित हो गई माशाअल्लाह। देख मुझे मालूम है तू चुपेगा नहीं। असगर के नजदीक मौलाना अच्छा सुन, तेरे घर का एक हवाला है, तेरे घर की एक किताब है जिसका नाम है कुछ देर गैर मुकल्लिदीन के साथ। इस किताब में लिखा है कि किसी भी मजहब का माखज अकाबिर का सुनना किसी भी मजहब का माखज अकाबिर का अरे सुनना खान नाइमी अपने और अपने हम मसला देख रहे हैं हजरत, देख लीजिए। इसने कहा कि मेरे खिलाफ है, तो घर बात इसकी मानी जाएगी कि इसके अकाबिरीन की मानी जाएगी? मैंने तो ये नहीं कहा कि हमारे घर के मौलवी मुफ्ती के फतवे अरे मैंने तो तुम्हारी शिकस्त इसने मान लिया कि जो शख्स इसने मान लिया कि शैतान जिस शख्स का ये अकीदा हो कि हुजूर के मिस्र आवाज शैतान निकाल सकता है वो मुसलमान है। अरे तो तू मत करना, तेरे तो समझ में नहीं आई ना बात, तो भागना तुझे चाहिए, तुझे नहीं करना चाहिए। बात मान लिया कि जमाते देवबंद के नजदीक है, जमाते देवबंद के नजदीक हमारे अकाबिर उलमा मुसलमान है, इसलिए ये दावा लेकर के आया है कि हकीमुल उम्मत बरेलवियों के नजदीक काफिर है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, और अपने मौलवियों के लिए कोई हुक्म नहीं लगा रहा है। तो इसलिए कि देवबंद के नजदीक हमारे उलमा बरेलवी, हाँ बरेलवियों के लिए हुक्म लगा रहा है, अपने शैतान मुल्लाओं के लिए कोई हुक्म नहीं लगा रहा है, ये शैतान कर रहा है। देवबंद के नजदीक हमारे अकाबिर उलमा मुसलमान है, इसलिए ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बात आज साबित हो गई अली असगर की ज़बान से कि जमाते देवबंद और इनकी एक किताब और है जाहिल तुम्हारे नजदीक हमारे उलमा मुसलमान है, मेरा दावा ही नहीं है, मेरा दावा ही नहीं है। तो हमारे अकाबिर की किताब पेश कर रही है, मेरा दावा ही नहीं, मेरा दावा है अहमद यार खान मैं वही बता रहा हूँ, अपने और अपने मसलक मौलवी की इबारत मैं वही बता रहा हूँ कि तेरा दावा बातिल है। मैंने यही कहा कि तेरा दावा बातिल है, मैं वही तो बता रहा हूँ कि तेरा दावा बातिल है। कि हमारे अकाबिर जब तू जमाते देवबंद की नुमाइंदगी करने आया है तो अपना मौक़िफ़ बता दे। हमारी और हमारे अकाबिर की तहरीरात जो असली काफिर तो फिर हमारे घर तो मैं वही तो बता रहा हूँ, दावा ही नहीं, तेरा करने आया है जमाते देवबंद। अच्छा इसका टाइटल पेज भेज जरा, इसका टाइटल पेज भेज। जमाते देवबंद की और दावा लेकर के हमारे उलमा का आया है, तो तब तो तेरा दावा ही बातिल है ना, यही तो मैं बता रहा हूँ। जी 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 भाई जमाते देवबंद की नुमाइंदगी सामीन, जमाते देवबंद की अच्छा हजरत एक बात बता दूं, करके आया है जमाते के नजदीक हमारे उलमा ये सवालों की पुतलियां बांध के लेके आता है, ये सवालों वो तो आवाम फैसला, वो तो आवाम को फैसला करना है, वो तो आवाम को फैसला करना है, और फैसला आवाम को करना है, फैसला आवाम को करना है। कर लेगी आवाम फैसला कर लेगी, मेरा दावा ही नहीं है, मेरा दावा बातिल है, तेरा दावा नहीं, तेरा दावा बातिल है, तेरा दावा अगर यहाँ नहीं है तो तेरा दावा बातिल है। अपनी आवाज हुजूर की आवाज से मुताबा कर सकता है। नूरसन भाई आप लोग खामोश रहें, बीच में बोलिएगा नहीं। सामीन अगर इसका ये दावा है कि हमारे उलमा के नजदीक हमारे दिगर उलमा काफिर है, तो इसका दावा बातिल है। जब तक ये अपनी जमात का मौक़िफ़ नहीं बताता है, ये अपनी जमात का मौक़िफ़ बताने से इसलिए डर रहा है कि अगर इस मौक़िफ़ पे अगर ये हुक्म लगा देगा तो इसके कई उलमा जो है जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इनकार है, नहीं इतना बड़ा झूठ। हाँ सामीन देखिए ये हुक्म नहीं लगा पा रहा है, तो लगाना हुक्म लगा, ये आया है जमाते देवबंद की नुमाइंदगी करने के लिए और ये अपना दावा नहीं पेश कर पा रहा है। जो है
अपने खुद ऊपर घाट में उतर जाते हैं। अरे तुम्हारे नहीं होती ऐसे तो बोलते हुए शर्म नहीं आती। तुम्हारे ऐसे तो तुम्हारे कितने मौलवी तुम्हारे मौलवियों के फतवे के सर पे काफी मरदूद की जो है अबे सुन मौलवी रशीद अहमद गंगोही और मौलवी इस्माइल देहलवी के फतवे से थानवी हरामी काफिर है, थानवी हरामी काफिर है। ही नहीं। अरे साले, अच्छा तू इतनी सवालों की गठरियां बांध के क्यों आता है? हम सवाल करते हैं तो जवाब नहीं देता, शैतान के पुत्र। अब बोल। हाँ मैं कह रहा हूँ नूर हसन भाई सामीन इसने ये कहा जमाते बरेलवी के उलमा के नजदीक दीगर उलमा काफिर है। सामीन इसका मौलवी इलियास घामड़ एक किताब में पढ़ रहा हूँ सामुल हरमैन का तहकीकी जायजा। सामीन में पढ़ रहा हूँ चुप ना, अजगर चुप, अजगर चुप, आवाम जज है, तू जज नहीं है, तू जज अजगर चुप, अजगर चुप, ये बात करने का ढंग ही नहीं है। अरे हजरत में कॉल काट रहा हूँ, लड़ाई होने लगी, आवाम इस पे ही फैसला कर लेगी। मैं कॉल काट रहा हूँ, ये लड़ रहा है, ये लड़ रहा है। और कोई एक है नाम नहीं बता रहा है। नूरहसन भाई ये किताब का नाम है का तहकीकी जायजा। इसका मौलवी लिखता है अब आइए चलते हैं फाजिल बरेलवी के यहाँ। कहते हैं कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ कर ले मैं कर रहा हूँ। अच्छा भाई यहाँ से रिकॉर्डिंग काट दूं मैं यहाँ से? नहीं फोन काट के भागना मत। नहीं मैं रिकॉर्डिंग चालू रख, रिकॉर्डिंग चालू रख, रिकॉर्डिंग चालू रख, चालू रख, चालू रख, नहीं चालू रख, बंद कर दूं? अबे चालू रखना, कह दिया कितनी बार कहूँ? यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? तेरी सारे हरामी जिना की पैदावार, चालू रख, चालू रख, चालू। जवाबन अर्ज ये है कि मेरा चरवाहा कहने से कहीं ज्यादा ये है कि रानी कहे हमारा कहने से कहीं ज्यादा डींगे मार, डींगे मार, डींगे मार, डींगे। अबे साले हरामी जिना की पैदावार मौजूद से मैं भागा हूँ कि तू भागा है? लगा ना हुकुम, लगा हुकुम, लगा हुकुम, लगा हुकुम। जब तक हुकुम नहीं लगाता नूर हसन कुछ कहता ही नहीं, मजा नहीं आता। हुकुम लगा पहले, फिर नूर हसन कुछ बोलेगा आगे। बात पूरी हो या ना हो, सामने से जवाब आना चाहिए नूर हसन के लिए। मैं बात ही नहीं करता। कितनी ऑडियो मैंने तूने मेरे देखी है ना, जब तक सामने वाला कुछ कहता नहीं नूर हसन बोलता ही नहीं। समझा? गधे बेवकूफ समझ रहा है क्या? हुकुम लगा, हुकुम लगा, हुकुम लगा ना, हुकुम लगा, हुकुम लगा, हुकुम लगा, हुकुम लगा, हुकुम लगा, हुकुम लगा। अरे देख रहा है जरा, कब से कह रहा हूँ हुकुम लगा, हुकुम लगा, हुकुम लगा ही नहीं रहा है। ताल में काला है ना कुछ, ये जानता है साला शैतान क्या कौन गिरफ्त में आ रहा है। यही करना मत कर, गधे की औलाद। अरे यार तू सुनता ही नहीं है, लड़ता है, लड़ाई करता है, ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए गुस्सा आ जाता है। कौन करता है? मैंने अरे सारे हरामी दोनों तरफ से बोल रहे हैं। इसको लड़ाई कहते हैं, लोग झगड़ा कहते हैं इसको, शैतान कहीं का। इसको लोग झगड़ा कहते हैं, बातचीत थोड़ी कहते हैं, गुफ्तगू थोड़ी कहते हैं, कोई सुनेगा भी नहीं इसे। और तू यही चाहता है हराम की पैदावार के लोग इसको सुने ना, झगड़ा बन जाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो सुनने वाले हैं वो सुनेंगे पूरी इंशाअल्लाह। बिल्कुल पूरी तुम्हारी किताब है। और सुन एक बात और बता दूं मैं, एक बात और बता दूं, हराम के पिल्ले, तेरी जो ऑडियो तेरे चैनल पे जो पड़ी हुई है 200, 250, 300, 500, 1000, इससे ज्यादा नहीं गई। क्या क्या मेरे चैनल पे देख, लाखों ऑडियो भेजी, लाखों पहुंची हुई है। कर लिया है, अब खुद भाग करके अपने शौहर सुफेल चमकी को जो है उसने दे दिया। चलो असगरी बेगम बोल, नूर हसन की बोल, असगरी बेगम बोल, नूर हसन का बोल। सुनो यहाँ से मौजूद खत्म हो गया। सामीन इसने एक दावा बनाया था कि उलमाए बरेलवी के नजदीक दिगर उलमा काफिर है। सामीन बीच में कोई नहीं बोलेगा, इसको बड़बड़ाने दीजिए, इसके बड़बड़ाहट का जवाब मेरे पास है। सामीन इसने एक दावा पेश किया था कि उलमाए ये काट के आ गया, तुम काटना मत, रिकॉर्डिंग मत काटना, रिकॉर्डिंग मत काटना, रिकॉर्डिंग मत काटना, रिकॉर्डिंग मत काटना। हाँ नूरहसन भाई खामोश है, बोलिए मैं बोल रहा हूँ। इसने ये उसूल बनाया कि उलमाए बरेलवी के नजदीक दिगर उलमाए बरेलवी काफिर है। तेरी शिकायत है अगर तू साले रिकॉर्डिंग काटेगा तो। अरे नूरहसन भाई खामोश रहिए, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नूरहसन भाई खामोश रहिए। हाँ अब मैं बता रहा हूँ,
मैं बता रहा हूँ कि इसने जो दावा किया कि दिगर उलमाए बरेलवी के नजदीक हमारे उलमाए बरेलवी यानी कि हकीमुल माज़ल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन नहीं कर पाया, जबकि इसने अपना दावा नहीं पेश लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। बता दूं कि इसके दिगर उलमाए देवबंद के नजदीक इसका मौलवी थानवी काफिर है। मैं साबित कर रहा हूँ जी। इसका मौलवी उर्दू पर पता लिखता और है एक बात मुस्तामुल इसमें हरमैन का झूठ बोला तहकीकी इसने जायजा, कि यहाँ पे जो उसमें इनकार किया लिखता है है बस कि का अब शैतान आइए अपनी चलते हैं आवाज फैज़ अहमद। हजरत ये बोल रहा है बीच में, मैं इसका कॉल काट रहा हूँ। अरे यार नूर हसन भाई मत बोलिए यार, मैं बोलता हूँ कि मत बोलिए, खामोश रहिए। अब आइए चलते हैं फैज अहमद ओवैसी बहावलपुरी के यहाँ। वो फरमाते हैं कि जो है राई कहने के मुतालिक जो है इसका इलियास घामड़ लिखता है ना। कहते हैं कि अब आइए चलते हैं फाजिल बरेलवी के यहाँ। उन्होंने जो है राई उम्मत कहा, राई क्या नाम है, दिगर एतबार से जो है इसने इसका मौलवी इलियास घामड़ आला हजरत फाजिल बरेलवी को काफिर कहने की कोशिश की। किसने? इलियास घामड़ ने। सामीन, और उसके बाद इसने कहा कि अब लोग ये कहेंगे, बरेलवी ये कहेंगे कि फतवे कुफ्र तो राइना पे है ना, फतवे कुफ्र तो राइना पे है और मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने राई लिखा है। तो जवाबन अर्ज ये है कि राइना कहने से कहीं ज्यादा सख्त राई कहना है। यानी कि राइना के माने होता है हमारा चरवाहा और राई के माने होता है सिर्फ चरवाहा। तो हमारा चरवाहा कहने से कहीं ज्यादा सख्त सिर्फ चरवाहा कहने पे है ना। ये बात उसमें मौजूद है। इसका मौलवी इलियास घामड़ लिखता है हुस्तामुल हरमैन का तहकीकी जायजा में। अब सामीन, इसने ये उसूल बना दिया कि राई कहना ज्यादा सख्त है। किसने? इलियास घामड़ ने। अब मैं थानवी के पास चलता हूं, इसका थानवी क्या लिखता है। सामीन, इसका थानवी लिखता है राई बंदगाने खुदा। सामीन, इसका मौलवी इलियास घामड़ ने क्या उसूल बनाया था, क्या कि अगर कोई शख्स राई कहता है तो वो ज्यादा सख्त है ना। किसके मुतालिक? राइना कहने के मुतालिक कहीं ज्यादा सख्त है राई कहना। और इसका थानवी क्या लिखता है मैं बता देता हूँ। इसने जो उसूल लेकर के आया था उस उसूल के तहत मैं पहले इसके मौलवियों को काफिर साबित कर दूं, क्योंकि ये इनकी फितरत खासा है। एक मिनट, किताब निकाल दूं। किताब का जो नाम है थानवी का, जो उसने राय बंदगाने खुदा का है, मैं जरा सा किताब निकाल देता हूं, उसके बाद बात समझ में अभी आ जाएगी। हाँ, किताब का नाम है, उधर खड़ी है। हाँ भाई उस्ताद, क्या हाल है? कल ही आ गए यार हम तो। और सब बढ़िया? क्या हो रहा है? कब अभी आए हो क्या? किताब का नाम है हक्कानियत इस्लाम, ठीक है। और सामीन, इसका मौलवी लिखता है कि इसका मौलवी अशरफ अली थानवी लिखता है राय बंदगाने खुदा। क्या है सामीन? देखिए मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। हक्कानियत इस्लाम किताब का नाम है और इसका सफ़ा नंबर है, सफ़ा नंबर 31 पे लिखता है कि अखबार मशरिक गोरखपुर 31 मई 1927 में वो वाकया मिला जिसको लाला हंसराज बीए इस्लाम के फैलने का सबब ठहराते हैं और उसको वो अपने रिपोर्ट में लिख चुके हैं। उसी का तर्जमा मुझको याद पड़ता है, आगरा से जो अखबार मुबल्लिग या तबलीग निकलता था उसमें भी छप चुका है। इस हवाला में भी लिखा था कि साहिल मालाबार का राजा साहिब ने चांद के 2 टुकड़े होना देखा था। रात के वक्त ऐसे वाकया के पेश आने से जो घबराहट हुई थी उसके बाइस अपने खासल खास मसाहिबों को, जिसमें एक मरताज और बाखुदा पंडित भी था, बुलवाया, जिसने अपने अकीदे के मुताबिक बात पेशन गोइयां भाई सुजूर अनवर तरकील अंबिया सरदफ्तर पैगंबर राय बंदगाने खुदा। इसका मौलवी थानवी लिखता है राय बंदगाने खुदा। और हुस्तामुल हरमैन का तहकीकी जायजा जो इसका इलियास घामड़ है पाकिस्तान का, वो लिखता है कि राई कहना कहीं ज्यादा सख्त राइना के मुतालिक है ना। सामीन, इसके देवबंदी मौलवी के फतवे से इसका थानवी काफिर हुआ कि नहीं हुआ? सामीन, ये उसूल बनाते हैं आला हजरत को काफिर कहने के लिए, हमारे उलमा को काफिर कहने के लिए, और खुद काफिर होकर के चले जाते हैं। अब सामीन, इसने जो हवाला पढ़ा है क्या नाम है मवाइज़े नईमिया का हवाला, उसने काट करके छाट करके पेश किया, ठीक है। उसके बाद जब हमारे नूर हसन भाई ने गिरफ्त की तो उसपे जो है ये हरामी पना किया और इधर उधर की बात करने लगा और कह रहा कि ये मेरा दावा ही नहीं है। सामीन, इसका जो इसने दावा किया कि हमारा दावा ये है कि जमाते बरेलवी के उलमा के नजदीक दिगर उलमाए बरेलवी काफिर है, यानी कि जमाते बरेलवी के जो उलमा है उनके फतवे से हमारे हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी काफिर होते हैं। जब इससे पूछा जा रहा है कि तू अपनी जमाते देवबंद का हुक्म बता, तो जमाते देवबंद का हुक्म नहीं बता रहा है। जमाते देवबंद का हुक्म बताएगा तो इसका दुबुर लाल हो जाएगा। ये इतना हरामी है। सामीन, अब ये भाग चुका है मेरे ख्याल से। नूर हसन भाई भाग गया क्या? ये हाँ भाग गया ना। हाँ, इसको उठा करके डाल दीजिए। हेलो जी। हाँ, और एक चीज बताऊं, रिकॉर्डिंग खत्म हो गई?
बंद कर दूं? हाँ बंद कर दीजिए।